All right, let's get right into it. We are talking about a brand new, absolutely massive policy that's set to completely reshape India's job market. It's got a pretty long name, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, so we'll just call it PMVBRUY. And make no mistake, this is a huge bet on creating millions of formal, secure jobs. So, when we say a big bet, what does that actually mean in real terms? Let's break down the sheer scale of this thing, because the ambition behind this new employment scheme is, well, it's pretty incredible. First up, the headline number. The main goal here is to create over 3.5 crore, that's 35 million new formal jobs. And get this, the timeline is super tight, just 2 years, between August 2025 and July 2027. This isn't some minor adjustment. It is a full-throttle attempt to formalize India's workforce. Now, to make something like that happen, you need money. A lot of money. The government is putting up nearly 1 lakh crore rupees for this. To put that in perspective, that financial commitment alone makes this one of the single largest employment initiatives India has ever seen. And this isn't just some short-term plan to boost jobs for a couple of years. It's being positioned as a core piece of India's much bigger long-term vision, the Viksit Bharat at 2047 goal. The thinking is pretty clear. You can't really become a developed nation without a massive, formalized workforce. It's seen as a total non-negotiable. So you might be wondering, okay, we've seen job schemes before, what makes this one so different? Well, the crucial change, the real secret sauce, is a fundamental shift in how the government is giving out the incentives. See, the old way, with schemes like PMRPY or ABRY, was kind of indirect. The government would help cover a part of the Mandatory Provident Fund or EPF payments. It was a benefit, sure, but it was sort of hidden in the accounting. The new PMVRY, it just scraps that model completely. Instead, it's all about putting direct, tangible cash into the bank accounts of both the companies doing the hiring and the new employees getting those jobs. You can really think of this upgrade in 3 simple words. It's direct. No more complex subsidies, just cash in hand. It's digital. The whole thing runs on India's tech stack, which makes it transparent and easy to track. And it's meant to be dynamic, designed to make an employer think, hey, with this incentive, I can afford to hire someone new right now. All right, so that's the big idea. But what does this deal for both sides actually look like in practice? Let's get into the nitty-gritty of how it works, starting from the perspective of someone just entering the formal workforce. So if you're what the scheme calls a first-timer, which basically means you've never had a formal job with an employee's Provident Fund account before, then there's a direct financial boost waiting for you. Now, they don't just hand you the cash on day one. It's pretty cleverly designed. After you complete 6 months on the job, you get your first payment. Then, once you hit the 1-year mark, and this is a key part, after you complete a mandatory financial literacy course, you get the second half. This way, it rewards you for not only keeping the job, but also for skilling up on how to manage your finances. Okay, so that's the deal for the employee. Now let's flip the coin and look at the businesses. For them, and especially for the small and medium-sized enterprises that are really the engine of our economy, this scheme is a powerful, direct incentive to grow their team. Here's how it works. For every eligible new person they hire, the employer gets a cash payment from the government every single month. And as you can see, the amount changes based on the employee's salary, going up to 3,000 rupees a month. This directly cuts the cost of hiring and makes it much easier for a growing business to say yes to bringing on more people. But, and this is a really important safeguard, companies can't just fire one person and hire someone new to claim the benefit. The money is only for what's called net additional employment. That means a business has to genuinely grow its total number of employees above what it was before. It's all about creating truly new jobs, not just replacing old ones. So while these incentives are available pretty broadly across all sectors, the scheme does kind of play favorites. It's placing a particularly large bet on one key part of the Indian economy that the government really wants to see boom. And that sector is manufacturing. Just look at this chart. For most businesses, the cash incentives for a new hire last for 2 years. But if you're a manufacturing company, you get that support for double the time, a full 4 years. That is a loud and clear signal that this is designed to supercharge the Make in India initiative. Now with nearly 1 lakh crore of public money on the line, how do you make sure it all goes to the right places? The answer is technology. The entire scheme is built on a modern tech platform. Every single first-time employee has to generate their unique ID using face authentication. This is a huge deal because it's a powerful defense against fraud or any ghost beneficiaries.
Okay, so the plan sounds impressive. It's direct, digital, and definitely ambitious. But, a brilliant plan on paper is one thing. Making it work in the real world, well, that's where you run into some roadblocks. And the first major hurdle, perhaps the biggest one, involves the very businesses this scheme is supposed to help the most, our micro, small, and medium enterprises, the MSMEs. I mean, think about it. If you run a small business, you probably don't have a big HR team or a bunch of accountants. So having to navigate all the digital compliance and keep perfect records to prove you're adding jobs can be a huge burden. We've seen with past schemes that this kind of complexity can really limit how many businesses in smaller cities actually sign up. Then there's the other critical question that policy experts are asking. Okay, let's say the scheme creates millions of jobs, but what kind of jobs will they be? This gets to that classic debate, quantity versus quality. There's a real risk that if the incentive is mainly about headcount, employers might be pushed to create a lot of low-wage, low-skilled jobs just to get the benefit. The concern is that this might come at the expense of investing in higher-skilled, more productive roles that really drive the economy forward in the long run. And all of this leads us to the final, massive, 1 lakh crore rupee question. Is this initiative going to be the catalyst that finally transforms India's formal economy, or will it end up as a costly experiment? Ultimately, its real success won't just be about hitting that 3.5 crore jobs target. It'll be measured by whether it creates a deep, lasting shift for millions, bringing them into a more dynamic and secure labor market. This is a truly massive bet on India's future, and the stakes just couldn't be higher. नमस्कार। तो भारत सरकार नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। एक नई स्कीम आई है, नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, या शॉर्ट में कहें तो PMVBRY। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि ये असल में है क्या और ये काम कैसे करने वाली है। और ये सवाल सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सोचिए, करोड़ों लोगों के लिए अच्छी, पक्की, सेफ नौकरियां कैसे बनाई जाएं? ये वो बड़ी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए सरकार ये नई स्कीम लेकर आई है। और देखिए, लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं रखा गया है। सरकार का टारगेट है कि अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक, यानी सिर्फ 2 साल के अंदर 3.5 करोड़, जी हां, 3.5 करोड़ नई फॉर्मल जॉब्स बनाई जाएं। ये एक जबरदस्त, बहुत ही एम्बिशियस नंबर है। देखिए, फॉर्मल जॉब्स मतलब वो नौकरियां जहां सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें मिलती हैं, वो भारत के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बात सिर्फ नौकरी देने की नहीं है, बात है एक ऐसी मजबूत वर्कफोर्स बनाने की जो देश की तरक्की की रीढ़ बन सके। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार का जवाब क्या है? जवाब है PMVBRY, पूरा नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अच्छा, तो आसान भाषा में ये है क्या? समझिए, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार कैश देती है। किसे? कंपनियों को नई नौकरी देने के लिए, और उन लोगों को भी जो पहली बार किसी फॉर्मल नौकरी में आ रहे हैं। मतलब दोनों को सीधा कैश का फायदा। और इस स्कीम की सबसे खास बात यही इसका डबल इंसेंटिव मॉडल है। ये प्रॉब्लम पर दोनों तरफ से अटैक करती है। ये सिर्फ कंपनियों को ही नौकरी देने के लिए नहीं उकसाती, बल्कि जो लोग पहली बार नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी सीधे तौर पर फायदा पहुंचाती है। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? ये जो कैश इंसेंटिव है, ये असल में एम्प्लॉइज और कंपनियों तक पहुंचेगा कैसे? आइए इसकी पूरी वर्किंग को समझते हैं। तो रणनीति बड़ी सिंपल और सीधी है। एक तरफ जो लोग पहली बार फॉर्मल जॉब कर रहे हैं उन्हें एक मुश्त कैश बोनस दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जो कंपनियां नई जॉब्स क्रिएट कर रही हैं उन्हें हर महीने डायरेक्ट कैश सब्सिडी मिलेगी। और ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो किसी भी नए कर्मचारी को मिल सकता है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में आ रहा है। सोचिए, करियर की शुरुआत में 15,000 रुपए का ये बोनस एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। पहली किश्त मिलेगी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, और बची हुई रकम 1 साल की नौकरी और एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद मिलेगी। ये डिजाइन बहुत स्मार्ट है ताकि लोग नौकरी में टिके रहें और साथ ही पैसों को मैनेज करना भी सीखें। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सरकार ऐसे ही पैसे नहीं देगी। ये सब्सिडी सिर्फ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पर है। मतलब ये है कि कंपनियां सिर्फ पुराने लोगों की जगह नए लोगों को रख कर ये फायदा नहीं उठा सकती। उन्हें अपनी टीम का साइज असली में बढ़ाना होगा, असली ग्रोथ दिखानी होगी, सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं। कंपनियों के लिए भी कुछ शर्तें हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नई हायरिंग कर दी और सब्सिडी मिल गई, नहीं। उन्हें पहले अपने पिछले साल के एवरेज से ज्यादा कर्मचारी रखने होंगे, और फिर अगर कंपनी छोटी है तो कम से कम 2 और बड़ी है तो कम से कम 5 नई नौकरियां बनानी होंगी, तभी वो इस सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये स्कीम सिर्फ कुछ इंसेंटिव देने के बारे में नहीं है। यह असल में भारत की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। और यहीं पर आता है असली गेम चेंजर। देखिए, पुरानी स्कीम्स जैसे PMRPY और ABRY में क्या होता था, सरकार कंपनियों का EPF का पैसा भर देती थी। एक तरह से ये इनडायरेक्ट मदद थी। लेकिन PMVBRY ये सीधा कैश देती है, पैसा सीधे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में। और तो और सैलरी की लिमिट भी देखिए, पहले 15,000 रुपए थी, अब सीधा 1 लाख रुपए महीना। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया गया है। इस स्कीम में एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। जहां दूसरे सेक्टर्स को यह फायदा 2 साल के लिए मिलेगा, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह लाभ पूरे 4 साल के लिए दिया गया है, 2 गुना। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को एक स्पेशल पुश देना चाहती है। ये 4 साल का लंबा इंसेंटिव मेक इन इंडिया जैसी पहलों को और मजबूत करेगा और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ी योजना बिना चुनौतियों के नहीं आती। तो इस एम्बिशियस प्लान के रास्ते में क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं, इनको भी समझना जरूरी है। कुछ बड़े सवाल हैं। पहला, जो छोटे और मंझले बिजनेसें हैं यानी MSMEs, क्या वो इतनी डिजिटल कागजी कार्रवाई पूरी कर पाएंगे? दूसरा, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां सब्सिडी के लालच में अच्छी हाई स्किल जॉब्स के बजाय बस ज्यादा संख्या में कम सैलरी वाली जॉब्स बनाने लगें। और शायद सबसे बड़ा सवाल, ये स्कीम भारत के उस विशाल इनफॉर्मल सेक्टर का क्या करेगी जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। तो हमने इस स्कीम के फायदे देखे, इसकी रणनीति को समझा और इसकी चुनौतियों पर भी गौर किया। इन सब के बाद इसका बॉटम लाइन क्या है, इसका असली मकसद क्या है, ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहती है, ये लाइन इस स्कीम की पूरी एम्बिशन को एक बार में बता देती है। लक्ष्य सिर्फ नौकरियां बनाना नहीं है, बल्कि भारत के पूरे लेबर मार्केट के स्ट्रक्चर को बदलना है, उसे ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा डायनामिक और सबके लिए खुला बनाना है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए, क्या यह डायरेक्ट कैश वाली नई रणनीति सच में भारत के इतने बड़े वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने की चाबी साबित होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक बड़ी और काफी महत्वाकांक्षी योजना पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY। हाँ। तो इस पर गहरी चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को समझें। मतलब ये है क्या, काम कैसे करती है, और हाँ, भारत के रोजगार परिदृश्य पर इसका असर क्या हो सकता है। अब जानते ही होंगे, ये योजना 2024-25 के बजट में जो प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल पैकेज था, उसी का हिस्सा है। और ये सीधे वो जो भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है, विकसित भारत एट 2047, उससे जुड़ी हुई है। और स्केल तो बहुत बड़ा है, करीब 99,446 करोड़ का बजट। और लक्ष्य रखा है अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच, मतलब 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्मल नौकरियां पैदा करने का। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये योजना असल में है क्या, इसका मुख्य मकसद क्या है? देखिए, इसका जो बिल्कुल कोर ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मल रोजगार सृजन को, मतलब औपचारिक नौकरियों को बढ़ाने की रफ्तार तेज करना, पहला। दूसरा, जो वर्कफोर्स अभी इनफॉर्मल सेक्टर में है उसे फॉर्मल दायरे में लाना। और तीसरा, कुल मिलाकर देश की रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, उसको बढ़ाना। और एक बात समझनी होगी, ये पिछली योजनाओं से, जैसे आपने शायद सुना हो PMRPY 2016 में आई थी, या फिर ABRY जो 2020 में कोविड के टाइम पर आई थी, उनसे काफी अलग है। वो योजनाएं क्या करती थी, वो ज्यादातर कंपनियों को, नियोक्ताओं को उनके जो अनिवार्य योगदान होते हैं जैसे EPF, उसमें सब्सिडी देती थी। हाँ, वो EPF वाला मामला था। बिल्कुल। लेकिन PMVBRY ये एक डुअल मॉडल है। ये सीधे नकद प्रोत्साहन देती है और ये पैसा नए कर्मचारी को भी मिलता है और उसे नौकरी देने वाली कंपनी को भी। ये सिर्फ मतलब तरीका नहीं बदला है, ये एक सोच का बदलाव है, लाभ को सीधे लोगों के हाथ में देना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, सीधे नकद दोनों को। हाँ, इससे पारदर्शिता और असर दोनों बढ़ते हैं। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है असल में। दिलचस्प। तो ये जो दोहरा प्रोत्साहन मॉडल है, इसके 2 हिस्से क्या हैं? पहले कर्मचारियों वाले हिस्से पर बात करते हैं, जैसे शायद पार्ट ए कह रहे हैं। इसमें कौन लाभार्थी है और क्या मिल रहा है उन्हें? हाँ, पार्ट ए जो है वो खास तौर पर फर्स्ट टाइमर के लिए है। मतलब वो लोग जो पहली बार फॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने
1 अगस्त 2025 से पहले कभी ईपीएफओ में या किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट, मतलब जो बड़ी कंपनियां अपना पीएफ खुद मैनेज करती हैं, उसमें कभी पैसा जमा नहीं किया। और जो इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी ज्वाइन करते हैं, इन्हें एक मुश्त वन टाइम नकद प्रोत्साहन मिलता है, 15,000 रुपए तक का। 15,000 रुपए तक नकद? हाँ। सीधा बैंक अकाउंट में ये मिलता कैसे, एक बार में ही? नहीं, यहीं पर थोड़ा ट्विस्ट है। ये 2 किश्तों में मिलता है। पहली किश्त जो 7,500 तक हो सकती है, वो तब मिलती है जब कर्मचारी उसी कंपनी में 6 महीने लगातार नौकरी कर ले और उसका ईपीएफ कटका रहे। और ये रकम कितनी होगी? उन 6 महीनों की जो औसत ईपीएफ सैलरी होगी, उसका आधा। फिर जो दूसरी किश्त है, मतलब बाकी बची हुई रकम, जिससे कुल 15,000 तक हो जाए, वो मिलती है 12 महीने की नौकरी पूरे होने पर। लेकिन एक और शर्त है। अच्छा, एक और शर्त? हाँ, उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स, वो पूरा करना होगा। अरे वाह, किश्तें, नौकरी में टिकना और फिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स, इसका क्या लॉजिक है? ये कोर्स क्यों? देखिए, ये बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ पैसे बांटने वाली स्कीम नहीं है। किश्तों में पेमेंट और ये 6-12 महीने की नौकरी की शर्त, ये कर्मचारी रिटेंशन को बढ़ावा देती है। मतलब लोग नौकरी ज्वाइन करके टिकें। हाँ, ये तो है, छोड़कर ना भागे जल्दी। बिल्कुल। और ये वित्तीय साक्षरता कोर्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनोवेटिव चीज है। सोचिए, जो पहली बार नौकरी कर रहा है, उसे पैसे कैसे मैनेज करें, बचत कैसे करें, निवेश क्या होता है, इसकी बुनियादी समझ देना। ये उन्हें सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नागरिक बनाने की कोशिश है। ये बात तो सही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ सुना था, फेस ऑथेंटिकेशन, वो क्या है? हाँ, ये भी अहम है। जो फर्स्ट टाइमर्स है, उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, वो उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फैट का इस्तेमाल करके ही जनरेट होगा। ये अनिवार्य है। फेस ऑथेंटिकेशन से यूएएन क्यों? इसका सीधा मकसद है फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थी न बने, मतलब घोस्ट बेनिफिशरीज को रोकना और पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना। यहाँ तक कि जो लोग पहले ईपीएफ सदस्य थे, मान लीजिए नौकरी छोड़ दी थी और अब दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, रीजॉइनीज, उनके लिए भी बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से वेरीफाइड यूएएन जरूरी है। समझ गया, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब आते हैं कंपनियों पर, नियोक्ताओं पर। पार्ट बी क्या है और ये कैसे काम करता है? पार्ट बी जो है वो नियोक्ताओं को, मतलब एम्प्लॉयर्स को नौकरी पैदा करने के लिए सपोर्ट करता है। इसमें सभी तरह के नियोक्ता शामिल हैं, नई कंपनियां, पुरानी कंपनियां और वो एग्जेम्प्टेड प्रतिष्ठान भी। शर्त बस एक है कि वो नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दिखाएं। नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी मौजूदा कर्मचारी संख्या से ज्यादा नई नौकरियां दें, जितनी उनकी पहले से टीम थी उससे ऊपर भर्ती करें। तो ऐसे नियोक्ताओं को हर नए योग्य कर्मचारी के लिए मासिक नकद प्रोत्साहन मिलता है और ये 3,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। ये प्रोत्साहन कर्मचारी की ईपीएफ सैलरी पर निर्भर करता है। अच्छा, सैलरी के हिसाब से अलग अलग है? कैसे? हाँ, इसमें 3 स्लैब बनाए गए हैं। अगर कर्मचारी की ईपीएफ सैलरी 10,000 रुपए या उससे कम है, तो नियोक्ता को हर महीने सैलरी का 10% मिलेगा, यानी 1,000 रुपए तक। अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 रुपए तक है, तो फिक्स्ड 2,000 रुपए प्रति माह। और अगर ईपीएफ सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा है, बशर्त यह है कि कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा न हो, तो नियोक्ता को पूरे 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा। और ये फायदा कब तक मिलेगा नियोक्ता को? सामान्य क्षेत्रों के लिए ये प्रोत्साहन 2 साल तक मिलेगा, हर नए कर्मचारी के लिए 24 महीने तक। लेकिन मैंने सुना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग है, कुछ खास। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके लिए ये प्रोत्साहन अवधि डबल है, मतलब 4 साल तक। 4 साल, ये तो काफी लंबा टाइम है। इसका क्या मतलब है? क्यों मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी टूल है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं और सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है। तो ये 4 साल का लंबा प्रोत्साहन इस सेक्टर में लेबर कॉस्ट को, मतलब कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को लंबे समय के लिए कम करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बूस्ट देना, भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए और आकर्षक बनाना और खासकर जो हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, वहां बड़े पैमाने पर स्थायी रोजगार पैदा करना। ये सिर्फ आज की भर्ती का फैसला नहीं है, ये कंपनियों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे नई फैक्ट्री लगाना है या नहीं, उत्पादन बढ़ाना है या नहीं, इन सबको प्रभावित कर सकता है। ये एक बड़ा इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन आपने कहा कि ये फायदा तभी मिलेगा जब कंपनी नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट यानी ज्यादा नौकरियां दे। ये कैसे तय होगा? कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां बस पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए रख लें सब्सिडी के लिए? नहीं, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। बेसलाइन और थ्रेशोल्ड की अवधारणा है। बेसलाइन मतलब एक शुरुआती संख्या, एक रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, वो कैसे तय होती है? जो कंपनियां पुरानी है, मतलब 31 जुलाई 2024 से पहले से रजिस्टर्ड है, उनके लिए बेसलाइन होगी पिछले 1 साल।
1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 के दौरान उनके यहाँ औसतन कितने कर्मचारी थे, एवरेज नंबर। और जो कंपनियां नई हैं, मतलब 1 अगस्त 2025 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुई हैं, उनके लिए बेसलाइन सीधे 20 कर्मचारी मान ली जाएगी। ओके, और थ्रेशोल्ड? थ्रेशहोल्ड वो न्यूनतम बढ़ोतरी है जो बेसलाइन के ऊपर करनी होगी फायदा लेने के लिए। अगर किसी कंपनी की बेसलाइन 50 से कम है तो उसे कम से कम 2 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। सिर्फ एक जोड़ने पर फायदा नहीं मिलेगा, कम से कम 2। और अगर बेसलाइन 50 या उससे ज्यादा है तो कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। समझ गया, मतलब 50 से कम वाले को 2 एक्स्ट्रा और 50 प्लस वाले को 5 एक्स्ट्रा। बिल्कुल, ये बेसलाइन और थ्रेशोल्ड मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी पैसा वाकई में नई नौकरियां बनाने पर खर्च हो, न कि सिर्फ वो जो नॉर्मल हायरिंग होती है या कर्मचारी आते जाते रहते हैं जिसे हम चर्न कहते हैं, उसको सब्सिडी देने में। इससे योजना फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहती है और इसका असर भी सही जगह होता है। ठीक है, तो योजना का ढांचा तो काफी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसे लागू करने की। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? ये सब जमीन पर कैसे चलेगा? देखिए, इसको लागू करने की जो नोडल एजेंसी है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय, और वो इसे EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए चला रहा है। जैसा हमने बात की, ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गई है और रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। लेकिन इसका बजट जो है वो वित्त वर्ष 2031-32 तक के खर्चों को कवर करने के लिए है, क्योंकि प्रोत्साहन तो कई साल तक चलेगा ना। और सबसे खास बात यह है कि ये योजना पूरी तरह से डिजिटली नेटिव है, मतलब टेक्नोलॉजी इसकी रग-रग में है। डिजिटली नेटिव मतलब सब कुछ डिजिटल। हमने फेस ऑथेंटिकेशन की बात की जो उमंग ऐप के जरिए UN बनाने के लिए अनिवार्य है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। ये फर्जीवाड़ा रोकने में बहुत मदद करेगा। हाँ, वो तो है। फिर जो पैसों का लेन देन है वो पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से होगा। कर्मचारियों को पार्ट ए में पैसा सीधा उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जाएगा, ABPS यानी आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के जरिए। और कंपनियों को पार्ट बी में हर 6 महीने में एक मुश्त रकम उनके पैन से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। कोई चेक या ड्राफ्ट का चक्कर नहीं, सब ऑनलाइन। बिल्कुल। और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। सरकार के जो अलग अलग डेटाबेस हैं, जैसे GST वाला GSTN, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CBDT, कंपनी मामलों का मंत्रालय MCA, ESIC, उद्यम पोर्टल वगैरह, इन सबको API के जरिए इंटीग्रेट किया गया है। API इंटीग्रेशन वो कैसे काम करेगा? मतलब सिस्टम अपने आप इन अलग अलग डेटाबेसेस से जानकारी चेक कर लेगा, जैसे क्या कंपनी वाकई चल रही है, क्या वो GST भर रही है, क्या उसके कर्मचारी ESIC में भी रजिस्टर्ड हैं। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी, जैसे कोई फर्जी कंपनी बना ले या कर्मचारियों की गलत संख्या दिखाए, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा भेजने के लिए नहीं बल्कि निगरानी और धोखाधड़ी रोकने के लिए भी है। बिल्कुल। ये फैट, DBT और API इंटीग्रेशन जैसी चीजें ये न सिर्फ प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और एफिशिएंट बनाती हैं, बल्कि फ्रॉड का रिस्क बहुत कम कर देती हैं। इससे पब्लिक मनी सुरक्षित रहता है और ये दिखाता है कि भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत हो गया है और कैसे सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ये तो काफी एडवांस लग रहा है। अब इतनी बड़ी योजनाएं, इतने सारे पैसे हैं, तो इसकी निगरानी, इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? कोई खास कमेटी वगैरह बनाई गई है? हाँ, इसके लिए एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। 2 लेवल पर कमेटियां हैं। सबसे ऊपर है एक स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष होते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव। इसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, नीति आयोग, इन सब के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। ये कमेटी पॉलिसी लेवल के फैसले लेती है, लक्ष्य तय करती है और पूरी योजना की ओवरऑल मॉनिटरिंग करती है। और इसके नीचे है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अध्यक्ष होते हैं EPFO के चीफ, यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, CPFC। ये कमेटी असल में योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार है। IT सिस्टम देखना, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाना, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करना और शिकायतें कैसे निपटाई जाएं, ये सब काम एग्जीक्यूटिव कमेटी का है। अच्छा, 2 लेवल की मॉनिटरिंग। और अगर कोई कंपनी गड़बड़ करे, नियमों का पालन न करे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नियम काफी सख्त रखे गए हैं। साफ कहा गया है कि जो कंपनियां फ्रॉड करती पकड़ी जाती हैं या जिनके खिलाफ कोई जांच वगैरह पेंडिंग है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नियोक्ताओं को कंप्लायंस फर्स्ट अप्रोच अपनाना होगा, मतलब पहले सारे नियम कायदे पूरे करो, तभी फायदा मिलेगा। और अगर कोई जानबूझकर धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। मतलब सख्ती भी है। और ये कैसे पता चलेगा कि योजना वाकई काम कर रही है या नहीं? कोई मूल्यांकन होगा? हाँ, मूल्यांकन का भी प्रावधान है। एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी इसका मूल्यांकन करेगी। 1 साल बाद एक मिड टर्म रिव्यू होगा, ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, कोई सुधार की जरूरत तो नहीं। और फिर जब योजना पूरी हो जाएगी, उसके 3 महीने के अंदर एक फाइनल इवैल्यूएशन होगा। और अगर किसी कर्मचारी या कंपनी को कोई शिकायत हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है। EPFO एक ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल बनाएगा और एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी होगा। कोशिश ये रहेगी कि 15 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा किया जाए। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा पीछे देखें, जो पुरानी योजनाएं थी जैसे PMRPY या ABRY, उनसे अगर हम PMBBRY की तुलना करें, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मुख्य नई बातें या इनोवेशन क्या है? क्या चीज इसे अलग बनाती है? देखिए, जैसा हमने शुरू में ही कहा था,
मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है ये सीधे नकद प्रोत्साहन पर जोर देना, डायरेक्ट कैश इंसेंटिव। ये फायदे को कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए बहुत ज्यादा पारदर्शी, समझने में आसान और प्रभावशाली बनाता है। हाँ, पुरानी योजनाओं में सब्सिडी वाला हिसाब थोड़ा उलझा हुआ लगता था कभी कभी। बिल्कुल, वो अक्सर कंपनियों के अकाउंट्स में दिखता था, कर्मचारी को शायद सीधे पता भी नहीं चलता था। यहाँ पैसा सीधे हाथ में आ रहा है या अकाउंट में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा महसूस होगा। दूसरा बड़ा इनोवेशन है ये दोहरा प्रोत्साहन मॉडल, मतलब कर्मचारी को भी फायदा, नियोक्ता को भी फायदा। ये एक साथ सप्लाई और डिमांड दोनों साइड को पुश देता है। हाँ, ये दोनों को मोटिवेट करेगा। तीसरा, ये जो अनिवार्य वित्तीय साक्षरता वाला कंपोनेंट है पार्ट ए में, ये मेरे ख्याल से बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन है, खासकर पहली बार नौकरी करने वालों के लिए। और चौथा, टेक्नोलॉजी का इतना गहरा इंटीग्रेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, डीबीटी, एपीआई लिंकेज, ये इसे पहले की योजनाओं से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनाता है। ये सब मिलकर इसे काफी अलग बनाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सोचा समझा डिजाइन लगता है। लेकिन क्या इसमें कुछ संभावित चुनौतियां या सीमाएं भी हैं? कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, कुछ चिंताएं हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी इतनी बड़ी योजना परफेक्ट नहीं होती और इसमें भी कुछ पहलू हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहली बात, जैसा कि योजना के डिजाइन से ही साफ है, इसका फोकस सिर्फ औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर पर है, वो कंपनियां और कर्मचारी जो ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। हाँ, ये तो है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र में काम करता है। ये योजना सीधे तौर पर उन्हें संबोधित नहीं करती। हाँ, उम्मीद ये जरूर है कि इस प्रोत्साहन से कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्मलाइज करने के लिए प्रेरित होंगी, लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर की विशाल समस्या का सीधा समाधान नहीं है। दूसरी चुनौती जो मुझे लग रही है वो है एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्यमों की भागीदारी। उनके लिए सारी डिजिटल जरूरतें पूरी करना, जैसे हर नए कर्मचारी का FAAT प्रमाणित UN बनवाना सुनिश्चित करना, नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का एकदम सही रिकॉर्ड रखना, हर महीने समय पर ECR फाइल करना, ये सब थोड़ा बोझिल हो सकता है। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पिछली जो ABRY योजना थी उसमें भी ये देखा गया था कि कई छोटे व्यापारी, खासकर Tier 2, Tier 3 शहरों में जागरूकता की कमी या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की जटिलताओं के कारण उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि MSMEs तक सही जानकारी पहुंचे और उन्हें शायद इन प्रक्रियाओं में कुछ सहायता भी मिले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनियां ही इसका ज्यादा फायदा ले जाएं। और एक चिंता ये भी रहती है ऐसी योजनाओं में कि नौकरियों की क्वालिटी का क्या होगा। मतलब ये जो सैलरी के हिसाब से अलग अलग प्रोत्साहन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां सिर्फ कम सैलरी वाली, लो स्किल वाली नौकरियां ज्यादा पैदा करें ताकि उन्हें सब्सिडी मिल जाए, बजाय इसके कि वो अच्छी सैलरी और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करें। मात्रा बनाम गुणवत्ता का सवाल। नौकरियों को बढ़ावा ना दे दें। योजना में कोशिश तो की गई है कि 20,000 से ऊपर सैलरी वालों के लिए भी अच्छा इंसेंटिव हो, लेकिन इस पर नजर रखनी होगी कि असल में किस तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं। और एक आखिरी बात, वो कर्मचारी रिटेंशन वाली। योजना स्थिरता को पुरस्कृत तो करती है क्योंकि फायदा 6 से 12 महीने टिकने पर ही मिलता है। हाँ, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या कंपनियां सिर्फ इंसेंटिव पीरियड तक ही कर्मचारियों को रखेंगी? और क्या वो वाकई अच्छे HR प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग और काम का माहौल बनाने में निवेश करेंगे ताकि लोग लंबे समय तक टिकें, या ये सिर्फ एक सब्सिडी लेने का जरिया बन जाएगा? ये सब बिल्कुल जायज चिंताएं हैं और योजना की सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करेगी। MSMEs को कैसे शामिल किया जाता है, नौकरियों की गुणवत्ता कैसी रहती है, और क्या कंपनियां इसे सिर्फ एक सब्सिडी न मानकर अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट के एक अवसर के रूप में देखती हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में जहां 4 साल का लंबा इंसेंटिव है। इंप्लीमेंटेशन ही कुंजी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है। इसमें कई नई बातें हैं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए सीधे नकद प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग पर खास ध्यान। मकसद साफ है, फॉर्मल रोजगार को एक बड़ा पुश देना और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करना। हाँ बिल्कुल, ये पिछली योजनाओं के मुकाबले एक ज्यादा परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी टूल लगता है। इसमें अनुभवों से सीखा गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी असली सफलता सिर्फ वो 3.5 करोड़ नौकरियों के आंकड़े को पाने में नहीं होगी। हाँ। असली सफलता इस बात में मापी जाएगी कि क्या ये भारत के श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में एक स्थायी, टिकाऊ बदलाव ला पाती है? क्या ये फॉर्मलाइजेशन को वाकई गहरा कर पाती है? क्या ये एक ज्यादा डायनामिक, गतिशील और समावेशी, इंक्लूसिव लेबर मार्केट बनाने में मदद करती है? और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है, जिस पर शायद श्रोताओं को भी सोचना चाहिए कि आंकड़ों से परे सफल औपचारिकरण यानी फॉर्मलाइजेशन असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी का नाम EPF रिकॉर्ड में आ गया, या इसमें काम करने की बेहतर शर्तें, वेतन सुरक्षा, स्किल बढ़ाने के मौके और एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट भी शामिल होना चाहिए? और क्या ये योजना उस गहरे और सार्थक फॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक वाकई मजबूत कदम है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने अंत में सोचने के लिए कि फॉर्मलाइजेशन का असली मतलब क्या है। चलिए, आज इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया।